Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal, and today we are discussing carbon and compounds, a very important topic from this chapter, that is ethanol and ethanoic acid. So, that's a very simple topic and an interesting one. So, let's discuss the topic about ethanol and ethanoic acid. Let's first discuss about ethanol. The formula of ethanol is C2H5OH, and this is the alcohol that is used for drinking purpose. That's not a good practice, it's not appreciable, but yet many people drink alcohol for pleasure. Ethanol is a very good solvent. It's soluble in water in all proportions. In paint industry also it is used as a solvent. It is present in cough syrups, tincture iodine also. It's a very good solvent, so it is used to dissolve many things. So, alcohol could be misused also. For example, in paint industry, if alcohol is brought as a raw material, ऐसा हो सकता है कि workers उसको consume कर जाएं for drinking purpose, and that is a big problem for the owner of the paint industry, क्योंकि उन्होंने alcohol मंगाया paint industry में as a solvent, but it could be consumed by the वर्कर्स, बट इसको मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए अल्कोहल में ऐड कर दिया जाता है, इथेनॉल में ऐड कर दिया जाता है थोड़ा सा मिथेनॉल. मिथेनॉल Methanol is poisonous. Even in a small quantity, methanol is highly poisonous. तो अगर आप मिथेनॉल को मिक्स कर देते हो इथेनॉल के साथ में, तो ये पूरा सॉल्यूशन बन जाता है, that is turns to be poisonous. Now it's not fit for drinking. It couldn't be consumed by people. पर अब एक सेकेंड प्रॉब्लम है, अगर वर्कर्स ने इस सॉल्यूशन को कंज्यूम कर लिया, अगर उन्हें नहीं पता है कि उसमें मिथेनॉल मिक्स्ड है और उन्होंने इसको कंज्यूम कर लिया, देन दे कैन डाई, है ना, उनकी डेथ हो सकती है, बिकॉज दिस मिथेनॉल इज पॉइजनस इन नेचर. सो फॉर दैट पर्पस मिथेनॉल के साथ साथ में उसमें एक डाई दी जाती है. सो दिस डाई गिव्स अ पिक्यूलियर कलर टू द सॉल्यूशन. इसकी वजह से सॉल्यूशन को एक कलर मिल जाता है, और जिसकी वजह से वर्कर्स कैन कम टू नो नाउ कि नाउ इट्स नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, क्योंकि इसमें एक डाई एडेड है और इसमें मिथेनॉल एडेड है. And such a alcohol in which methanol and dye are added, such a alcohol is known as denatured alcohol. तो इसे हम कहते हैं denatured alcohol. So it can come as a 1 marks question in your exams, that what is denatured alcohol. To prevent the misuse of ethanol, methanol and dye are added to it so that it becomes unfit for drinking purpose, and such alcohol is known as denatured alcohol. आपके एग्जाम्स में एक चीज और पूछ सकते हैं, दैट व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल. सो जस्ट थिंक, आप कई बार इंग्लिश में वर्ड यूज करते हो, एब्सोल्यूटली मीन्स 100%. तो एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब भी यही है. एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% प्योर अल्कोहल. अल्कोहल जब 100% प्योर अल्कोहल हो, उसमें कुछ भी वाटर डिजॉल्व नहीं हो, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, एंड दैट इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. वो लीथल होता है. लीथल मतलब किसी पर्सन की डेथ हो सकती है अगर वो कोई 100% प्योर अल्कोहल कंज्यूम कर ले. सो इट्स नॉट मेंट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. सो दिस काइंड ऑफ अल्कोहल इज नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल. मार्केट में जो भी अल्कोहल अवेलेबल होता है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, दैट इज ऑलरेडी हैविंग सम प्रपोर्शन ऑफ वाटर मिक्सड इन दैट. तो absolute alcohol is absolutely not fit for drinking. Okay, so that could be a second question, theory based question based on ethanol topic. The third theory based question could be alcohol is used as a fuel also. Alcohol is an excellent fuel. So we have seen that in the chemical properties of carbon compounds also, that ethanol can undergo combustion, and when ethanol undergoes combustion, it gives rise to, इसको जब burn करते हो, इसको जब burn करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और एनर्जी रिलीज होगी. एनर्जी कुड बी हीट एनर्जी अगर आप इसको बर्न कर रहे हो तो,
एंड अगर इसको फ्यूल की तरह यूज़ करोगे तो एनर्जी फॉर्म होगी। और ये अल्कोहल जो है दैट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल। कई कंट्रीज़ में इसको एज ए एडिटेड टू पेट्रोल यूज़ किया जाता है। पेट्रोल के साथ में अल्कोहल को ऐड किया जाता है। उसके दो रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट हमको ये अल्कोहल प्लांट सोर्स से मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल शुगर केन या ग्रेप्स को लेकर उसको फर्मेंट करवाया जाता है यीस्ट से। यीस्ट उसको फर्मेंट करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे और जो बनेगा दैट विल बी इथेनॉल, दैट इज कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। तो हमने प्लांट बेस्ड चीज से हमने इथेनॉल बना लिया जो कि एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। फ्यूल के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं पेट्रोल और डीजल जो कि फॉसिल फ्यूल्स हैं। और फॉसिल फ्यूल्स जितने भी होते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बट इथेनॉल को जब आप एज अ फ्यूल यूज करते हो तो इट्स सेड टू बी अ क्लीनर फ्यूल। क्लीन फ्यूल माना जाता है इसको क्योंकि वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। Oxides of nitrogen and sulfur are not produced in this case और इसलिए it's a very good option to be used as a fuel. ओके इसलिए ही हमारी कंट्री में भी सीएनजी पे बहुत फोकस है। सीएनजी भी एक क्लीन फ्यूल होता है। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है, CH4। मीथेन भी जब कंबशन होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा और सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे। इसलिए मीथेन दैट इज CNG, compressed natural gas, that is also considered as a clean fuel. Similarly, alcohol is used as a fuel. Okay. Now let's talk about the chemical properties of ethanol. That is the reactions of ethanol with different substances. In the chemical properties of carbon compounds, we have seen that alcohol shows oxidation reaction. So once again have a look at that because ethanol is there and that undergoes oxidation in presence of alkaline potassium permanganate. So let's have a look. So ethanol C2H5OH in presence of alkaline potassium permanganate or acidified potassium dichromate alcohol का oxidation होता है and that what is formed is ethanoic acid, that is CH3COOH. So from alcohol ethanoic acid is formed under the action of alkaline potassium permanganate और acidified potassium dichromate. alkaline potassium permanganate का एक पर्पल कलर होता है। जब आप उसमें इथेनॉल डालते हो तो वो उसका ऑक्सीडेशन करता है इथेनॉल का और उसका कलर चेंज हो जाता है एंड यू कैन सी दैट इट बिकम्स कलरलेस। तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट आप 11th-12th में जब एक्सपेरिमेंट्स करोगे तभी आप देखोगे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट को टेस्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। पर्पल कलर होता है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का एंड इट बिकम्स कलरलेस ऑन एडिशन ऑफ इथेनॉल। ओके, सो दैट इज वन रिएक्शन शोन बाय इथेनॉल। इथेनॉल का एक रिएक्शन सोडियम के साथ भी होता है। तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ में रिएक्ट करता है तो आपको पता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो क्या होगा दैट हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस hydrogen would be displaced by sodium atom. So what would be formed is C2H5ONA plus hydrogen gas would be liberated out. हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो जाएगी और C2H5ONA बनेगा। C2H5ONA को हम बोलते हैं सोडियम इथॉक्साइड। ओके, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम का नाम पहले आता है, ऐसे ही किसी भी सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स में सोडियम का नाम पहले आता है। सो वी कॉल दिस कंपाउंड एज सोडियम ईथ वर्ड फॉर C2 एंड ऑक्साइड इज ऑक्सीजन। सो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, इसको आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि आप एक इथेनॉल को आप सोडियम को एक कंपाउंड X के साथ रिएक्ट कर रहे हो और एक गैस लिबरेट आउट हो रही है दैट इज ब्लोइंग ऑफ द बर्निंग कैंडल विद अ पॉप साउंड। तो आपको पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट हो रही है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस X। तो आपका X क्या हो सकता है, इट कुड बी इथेनॉल। बट अगर और भी रिएक्शंस शो कर रखी हैं कि और वो जो सेम कंपाउंड है एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट से जब रिएक्ट करेगा तो एक एसिड बनाएगा, उस एसिड A है, देन यू कैन आइडेंटिफाई दैट इज इथेनॉल। क्योंकि सोडियम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इथेनॉल के साथ भी शो करता है, किसी और एसिड्स के साथ भी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एसिड लो, HCl को अगर सोडियम से रिएक्ट करवाओगे या किसी भी मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो भी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, पॉप साउंड के साथ वो
you can blow off the burning candle with that. Okay, so you have seen those reactions in acid, bases and salts chapter also. Okay, so now let's have a third reaction of ethanol. Let's have a look at that. Ethanol reacts with concentrated sulfuric acid. Hot concentrated sulfuric acid. It's 443 Kelvin temperature. बट टेम्परेचर याद रखने की जगह आप बस ये भी याद रख सकते हो कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है. एक चीज़ बच्चों याद रख लेना, आपके लिए बहुत काम आएगी. दैट इज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी चीज़ में से पानी रिमूव कर सकता है. तो जब आप इथेनॉल को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, इथेनॉल में से वाटर रिमूव हो जाएगा. ओके, तो अब इस फॉर्मूला में से H2O रिमूव करके देखो क्या बचेगा आपके पास. C2H4. C2H4 क्या होता है? C2H4 इज इथेन. C2H4 इज इथेन. सो जब हम इथेनॉल को वाटर रिमूव हो जाएगा. तो जब हम इथेनॉल को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो व्हाट वुड बी फॉर्म्ड इज इथेन एंड वाटर दैट वुड बी अब्सॉर्ब बाय दिस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. तो इथेन बन जाता है. ओके, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में एज लाइक स्पेशली इन NSO एग्जाम्स दैट कुड बी आस्क्ड. तो आपसे पूछते हैं कि एक कंपाउंड है X. जब वो कंपाउंड X सोडियम से रिएक्ट करता है तो एक गैस बनती है दैट ब्लोज ऑफ द बर्निंग कैंडल विद अ पॉप साउंड. मतलब हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है. जब सेम कंपाउंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक एल्कीन बन जाता है. एल्कीन ग्रुप इज इथीन. तो इथीन जो बना है दैट बिलोंग्स टू एल्कीन ग्रुप. तो एक एल्कीन फॉर्म हो जाता है. और ये सेम कंपाउंड X जब एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट एल्कलाइन KMnO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो एक एसिड फॉर्म होता है, एसिड A फॉर्म होता है. आपको वो एसिड A पहचानना होता है, आपको कंपाउंड X आइडेंटिफाई करना होता है और सारे इन्वॉल्व रिएक्शंस पूछ सकते हैं अगर ये थ्योरी एग्जाम है तो. ओके, अगर इफ इट इज NSO एग्जाम देन आपसे A पूछेंगे और आपसे X पूछेंगे. Okay, so that could be the pattern of questions that could come on the basis of the reactions shown by ethanol. Ethanol की ये reactions quickly याद कर लीजिए. Take pause the video for 2 minutes. Learn all these reactions. That would be good for you. Okay, so that's all about ethanol. Now we'll move on to ethanoic acid. Now let's discuss about ethanoic acid. Ethanoic acid's formula is CH3COOH. Ethanoic acid, you know that it belongs to carboxylic acid group. तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को ये बिलोंग करता है एंड 2 कार्बन कंटेन करता है, इसलिए इसके नाम में इथ पहले आता है ना. प्रीफिक्स इज इथ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन एटम्स. सो दिस इज इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड से रिलेटेड आपसे पूछते हैं कि इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं. व्हाई इज इट सो? व्हाई इट्स नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड? तो इथेनोइक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 290 केल्विन. अगर इस 290 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहा. क्योंकि 290 केल्विन इज अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री सेल्सियस. 17 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज हो जाता है. तो सर्दियों में कई बार 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है और तब प्योर एसिटिक एसिड वुड गेट फ्रीज एट 17 डिग्री सेल्सियस एंड इट लुक्स लाइक अ ग्लेशियर. आइस का ग्लेशियर की तरह ये दिखता है और इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं. ओके, सो प्योर एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 290 केल्विन एंड विंटर सीजन में कई बार फ्रीज हो जाएगा एंड इट लुक्स लाइक अ ग्लेशियर. इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम है एसिटिक एसिड. विनेगर में भी आप जानते हो दैट इज ऑल्सो हैविंग एसिटिक एसिड इन दैट. तो विनेगर में कितना एसिटिक एसिड होता है? विनेगर जस्ट हैज 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड. बाकी सारा पानी है. सो व्हेन यू परचेस अ बॉटल ऑफ विनेगर फ्रॉम द मार्केट, आपके 50 रुपए की बॉटल में 95% सिर्फ पानी उन्होंने आपको सेल कर दिया. तो 95% वाटर को आपने खरीदा है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज पर बॉटल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट. बट आपको तो पता ही नहीं था कि उसमें 95% पानी है और सिर्फ 5% to 8% इथेनोइक एसिड है. Okay, so that is the composition of vinegar. Now let's have a look at
the chemical properties or the chemical reactions of ethanoic acid. The first reaction is esterification reaction. Esterification reaction में esters form होते हैं. So before we see the reaction, let's have a look कि esters होते क्या हैं. Esters are present in essence. तो जब आप वेनिला एसेंस, ऑरेंज एसेंस, स्ट्रॉबेरी एसेंस यूज करते हो तो वो जो स्वीट स्मेलिंग है सब्सटेंस इन दैट इज एस्टर्स. तो ये जो ईस्टर्स है ये कैसे फॉर्म होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. Okay, so let's have a look at esterification reaction. That is the first reaction of ethanoic acid, that is esterification reaction. तो esterification reaction में हम लेते हैं ethanoic acid CH3COOH and we make it to react with ethanol. ethanol से आप इसको react करवाओगे. So ethanol is C2H5OH. This reaction can take place in presence of any acid. But remember, hot concentrated sulfuric acid हमने पढ़ा था. So we can take hot concentrated sulfuric acid also. Hot concentrated sulfuric acid हमने देखा था that it removes water from any substance. तो ये hot concentrated sulfuric acid किसी भी चीज में से पानी रिमूव कर सकता है, तो ये इन कंपाउंड्स में से भी वाटर को रिमूव करेगा. सो लेट्स रिमूव वाटर फ्रॉम दैट. यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा और एसिटिक एसिड का हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. व्हाट वुड बी रिमेनिंग, लेट्स राइट डाउन दैट. तो क्या बचेगा, CH3COO, CH3COO, C2H5, C2H5, and that is only ester. Esters जो होते हैं that is another functional group. तो आपने जो functional groups पढ़े हैं that are not complete, उसके अलावा भी कुछ functional groups होते हैं, उनमें से ही एक functional group है esters. तो esters form हो जाएंगे. इसको ethyl ethanoate भी बोलते हैं. इस ester का नाम क्या है, ethyl ethanoate. Okay, so ethyl ethanoate is the name of this ester and that is formed. तो आपने क्या किया इस रिएक्शन में, साथ में वाटर रिमूव आउट हो जाएगा. इस इथाइल इथेनोएट को ही आप एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिख सकते हो. एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर के फॉर्म में गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. So this is ethyl ethanoate, that is the ester that would be formed. एक बात और important I would like to tell that in some of the editions of NCERT book misprint है और यहाँ पर O की जगह C printed है. तो अगर आपकी भी NCERT book में वो misprint है तो you can make the correction. In some of the editions of NCERT book, previous editions, latest में नहीं है, पुराने editions में कहीं में है कि O की जगह यहाँ पर C mentioned है. Okay, तो इस reaction में हो क्या रहा है, we took ethanoic acid that is having very unpleasant smell. आप कभी स्मेल करके देखना विनेगर को, उसमें बहुत बदबू आती है, तो इट्स वेरी अनप्लेजेंट स्मेल. एंड अल्कोहल ऑल्सो एज वी हैव हर्ड कि इसकी भी स्मेल अच्छी नहीं होती. तो दो बदबू वाली चीजों को आपने मिलाया और खुशबू ही खुशबू हो गई, बिकॉज ईस्टर्स आर फॉर्म एंड वाटर इज रिमूव. तो क्या उस वाटर में ही बदबू थी जिसके रिमूव होने से खुशबू हो गई. Okay, so by just that way you can remember कि आप दो ऑफेंसिव चीजों को मिक्स कर रहे हो और खुशबू ही खुशबू हो रही है, that is ईस्टर्स आर बीइंग फॉर्म. ठीक है, इस ईस्टर को हम नेक्स्ट रिएक्शन में यूज करने वाले हैं और नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है सपोनिफिकेशन रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें सोप्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो ईस्टर बना है, ईस्टर को यूज करेंगे हम और उससे सोप बनाएंगे. तो लेट्स हैव अ लुक एट द रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन. So ester is CH3COO C2H5, ये ईस्टर फॉर्म हुआ था. इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से. सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, देन आल्सो द रिएक्शन वुड बी द सेम. तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसको रिएक्ट करवाओगे तो जो कंपाउंड बनेगा दैट वुड बी आपका ये C2H5OH वापस फॉर्म हो जाएगा. मतलब C2H5 इस NaOH में से OH ले लेगा और अल्कोहल वापस बन जाएगा. तो C2H5OH मतलब इथेनॉल वापस फॉर्म हो जाएगा और साथ में क्या बचेगा इस CH3COONA. So you can write down that CH3COONA. इसको आप कहते हो सोडियम एसिटेट और सोडियम इथेनोएट. इसका कॉमन नेम सोडियम एसिटेट है और केमिकल नेम सोडियम इथेनोएट है, दैट इज फॉर्म्ड. ओके, तो बच्चों क्या हुआ,
हमने लिया था फर्स्ट स्टेप में अल्कोहल एस्टर बनाने के लिए, और इस ईस्टर से जब हमने सोप बनाया, द फॉर्मूला दैट इज सिमिलर टू सोप, CH3COONA, और इसलिए आप इसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हो। तो हमने क्या किया, अल्कोहल को फर्स्ट स्टेप में यूज किया ईस्टर बनाने के लिए, और इस ईस्टर से जब हमने रिएक्शन करवाया NaOH के साथ में, तो हमको इथेनॉल वापस मिल गया। One thing that is not mentioned in your NCERT book is, you can remember, अगर आप 11th-12th में केमिस्ट्री लेना चाहते हो तो आपके काम आएगा कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि फर्स्ट स्टेप में यूज हो और सेकेंड स्टेप में आपको वापस मिल जाए, दैट इज नोन एज अ रीएजेंट। तो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में यूज किया आपने उसको, और सेकेंड स्टेप में आपको ये फिर से मिल गया, तो ऐसे कंपाउंड को कहते हैं रीएजेंट। ओके, तो ये इथेनॉइक एसिड के हमने दो रिएक्शंस देख लिए। फर्स्ट रिएक्शन वाज विद इथेनॉल, हमारा ईस्टर फॉर्म हुआ, और फिर इस ईस्टर को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, तो सोडियम एसीटेट बना, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप, एंड इथेनॉल वापस फॉर्म हो गया। Okay, so these are the reactions of ethanoic acid. Now let's see to some more reactions of this acid, ethanoic acid, with a base. Okay, so let's write down all the three reactions and then I'll explain you, because something is common between them. Okay, let's first have a look at the reaction of ethanoic acid with sodium hydroxide. नाउ यू नो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और इथेनॉइक एसिड एक एसिड है। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट क्या बनेगा, CH3COONA, एंड ये हाइड्रोजन इस OH के साथ मिलकर वाटर फॉर्म कर लेगा। वेरी इजी टू रिमेंबर, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, नथिंग न्यू फॉर यू ऑल। So it will form CH3COONA plus water would be formed. ओके, सो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, और इसलिए हमारा इथेनॉइक एसिड भी जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट सोडियम एसिटेट बनेगा और वाटर फॉर्म हो जाएगा। Okay, let's see to two more reactions, then I will tell you a type of question that's given in NCERT book as well. So ethanoic acid को जब आप सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, या फिर इथेनॉइक एसिड को आप सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम NaHCO3 इज अ फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो जब आप इथेनॉइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट दैट इज वॉशिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा से रिएक्ट करवाओगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम वही सॉल्ट बनने वाला है, दैट इज CH3COONA प्लस हमारे पास अब कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा, क्योंकि इन दोनों में ही CO3 भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगा और वाटर भी फॉर्म होगा। ओके, सो CH3COONA plus carbon dioxide plus water form होगा, and that would be formed in both the reactions. So you can see in both the reactions carbon dioxide gas बन रही है, and that is important क्योंकि आपके NCERT बुक में क्वेश्चन गिवन है कि आप अल्कोहल दैट इज इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, बट आप इथेनॉइक एसिड को रिएक्ट करवाओगे सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और जब कोई भी गैस फॉर्मेशन होता है तो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। जब इस गैस को आप लाइम वाटर के थ्रू पास करोगे तो दैट लाइम वाटर इज गोइंग टू टर्न मिल्की, एंड बाय दैट थिंग यू कैन कम आउट टू नो दैट हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुई है। Okay, so this could be used as a test to identify the presence of ethanol or ethanoic acid. Suppose आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि you have two test tube A and B, उनमें से एक में इथेनॉल है और दूसरे में इथेनॉइक एसिड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इथेनॉल है, कौन सा इथेनॉइक एसिड है। सो यू कैन यूज दिस टेस्ट टू आइडेंटिफाई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी, लाइम वाटर के साथ पास करो एंड यू विल फाइंड दैट इट विल टर्न मिल्की। ओके, सो दैट आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ इथेनॉइक एसिड। इट्स वेरी इजी क्योंकि इथेनॉइक एसिड के रिएक्शंस में सब में सेम प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है, दैट इज सोडियम एसिटेट, जिसको सोडियम इथेनॉइड भी कहते हैं। ओके, सो इन ऑल द रिएक्शंस वेदर इट वाज सपोनिफिकेशन रिएक्शन या फिर रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन ऑल दीज रिएक्शंस जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो सेम है, इसलिए रिएक्शंस लर्न करना आपके लिए बहुत ही इजी है। ओके, सो बाय दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। That's all for today. Take care of yourself. Good day, everyone.